ہم جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائشیں کی اور آپ علیہ السلام نے کیسے ان پر صبر کیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے ان سے مال و دولت، کھیت باغات، جانور، یہاں تک کہ ان کی اولادوں کو واپس لے لیا۔ اتنا سب ہونے کے باوجود کیسے حضرت ایوب علیہ السلام اس پر صبر کرتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اور جب حضرت ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی آزمائشوں میں پاس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ دوستو، واقعہ بڑا ہی دلچسپ ہے، اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو بنا اسکپ کیے لاسٹ تک دیکھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام جنہیں توریت میں جوب کہا گیا ہے، حضرت ایوب علیہ السلام بصرہ نام کی ایک بستی میں پیدا ہوئے جو فلسطین کے پاس ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 4 سورتوں میں کیا گیا ہے۔ قرآن سے صرف اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت مالدار اور خوشحال تھے، اور آپ کے صبر کا تذکرہ موجود ہے۔ مفسرین نے آپ کے تفصیلی حالات لکھے ہیں جو تھوڑے سے اضافے کے ساتھ ہیں اور بائبل سے ملتے ہیں۔ بائبل میں ایک پورا صحیفہ سفر ایوب کے نام سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار مال و دولت سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مویشی تھے اور سینکڑوں نوکر چاکر تھے، اور آپ کے پاس بے شمار کھیت کھلیان اور باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جو آزمائش کے دن گزارے وہ بہت ہی حیرت انگیز ہیں۔ پیارے دوستو، جن حالاتوں کا سامنا حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا وہ ایک عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ علیہ السلام 2000 قبل مسیح یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 2000 سال پہلے کے نبی ہیں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مال و دولت حضرت سلیمان علیہ السلام کو نوازا تھا، لیکن ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ اس زمانے میں جو بھی پالتو جانور ہوتا وہ سب کی بڑی بھاری تعداد آپ علیہ السلام کے پاس تھی۔ بہت سارے باغیچے تھے، ہر قسم کے پھلوں کے الگ الگ باغات تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بہت سی اسرائیلی یعنی یہودیوں کی روایتیں مکس ہو گئی ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کے بارے میں بہت سی غلط روایتیں بھی مشہور ہیں۔ اس لیے اس ویڈیو میں بہت ہی احتیاط کے ساتھ آپ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ہونہار اولادیں عطا کی تھیں۔ بعض روایتوں میں آپ کی 16 اولاد ہیں، بعض میں 30 ہیں، اور ایک ہی آپ کی زوجہ محترمہ یعنی ایک بیوی کا ذکر ملتا ہے، اور وہ تھی بی بی رحمت۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی امت میں 3 لاکھ لوگ تھے۔ 3 لاکھ لوگوں میں آپ علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی شریعت تھی، لیکن ان 3 لاکھ لوگوں میں سے صرف 100 ہی لوگ حضرت ایوب علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ اس کے بعد آپ کے غلام تھے اور ان غلاموں کی بیویاں تھیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے گھر والے تھے۔ کل ملا کر تقریباً 1000 یا 1200 کی تعداد میں تھے۔ یہ لوگ الگ الگ ایمان لائے تھے۔ باقی عوام الناس میں 3 لاکھ میں سے صرف 100 لوگ ایمان لائے تھے۔ سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ بے انتہا خیرات کرتے تھے۔ جہاں جہاں نظریں ڈالیں ان کی جائیداد تھی، باغیچے ہی باغیچے تھے، اور سالانہ جو آمدنی ہوتی تھی اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا مال نوازا تھا جس کا حساب رکھ پانا مشکل ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس مال کو لا تعداد تقسیم کرتے، اور آپ کے اخلاق کے بارے میں تفسیروں میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام عام غریب اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر یا گھمنڈ نہیں تھا۔ غریب اور مسکین آپ کے ارد گرد ہمیشہ رہتے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام ان غریبوں کو خوب نوازتے تھے۔ اللہ رب العزت کو آپ کی یہ ادا بہت پسند تھی۔
रब तबारक ताला ने आसमानों पर निदा फरमाया, तमाम फरिश्तों को कह दिया कि ऐ फरिश्तों, आज से हर आसमान के फरिश्ते को कह दिया जाए कि वो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारे, अल्लाह के नबी पर खूब रहमतें उतारे। इब्लीस लईन, शैतान मरदूद, अभी इसका दाखिला आसमानों पर बंद नहीं हुआ था। आसमानों पर ये जाता था और फरिश्तों की बातें सुनता था। ये इब्लीस आसमानों पर गया और उसने फरिश्तों को कुछ खास करते हुए देखा। उसने देखा कि आज यहाँ पर कुछ अलग हलचल है। उसने फरिश्तों से पूछा, क्या हुआ? फरिश्तों ने जवाब दिया, आज से अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर रहमतें उतारी जाएं। शैतान ने कहा, आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है? फरिश्तों ने जवाब दिया कि वो बहुत खैरात करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना करते हैं और बहुत शुक्र करते हैं। इब्लीस ने कहा, ऐ फरिश्तों, वो नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? वो शुक्र नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को कितनी नेमतों से नवाजा है, इसलिए शुक्र करते हैं। इतना सारा माल दौलत है, खेत खलियान बागात हैं, औलादे हैं, सब कुछ तो है, बस इसीलिए इबादत करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। अगर उनसे ये सब ले लिया जाए तो देखना कि वो कितनी शिकायत करेंगे। अगर उनसे माल ले लिया जाए, उनकी दौलत ले ली जाए, उनकी औलादे वापस ले ली जाए, फिर देखना वो अल्लाह ताला से कितनी शिकायत करते हैं। अल्लाह ताला ने उन्हें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। बस यही वजह है कि वो अल्लाह की इबादत करते हैं, हम्दो सना करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। रब तबारक ताला को जलाल आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शैतान के मुताल्लिक फरमाया, ऐ इब्लीस लईन, तुझे आदम के पैदा करने के वक्त ही मोहलत दी गई थी, ताकत भी दी गई थी। शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी थी, ऐ अल्लाह, मुझे मोहलत दे, मैं तेरे सारे बंदों को गुमराह करके दिखाऊं। रब तबारक ताला ने उसे टाइम दिया, वक्त दिया। आज फिर इब्लीस लईन को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ऐ इब्लीस लईन, जा, मैं तुझको अय्यूब के माल, अय्यूब के बगीचे, अय्यूब के तमाम जानवरों पर तसल्लुत देता हूँ, इख्तियार देता हूँ, तू जो चाहे कर ले। अय्यूब तेरी बातों में नहीं आएगा, वो कभी नाशुक्री नहीं करेगा, वो हमेशा सब्र करेगा। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर इब्लीस लईन को इख्तियार देना ये आजमाइश के तौर पर था। ऐसा नहीं था कि इब्लीस जो चाहे वो कर सकता था। अल्लाह ताला ने आजमाइश के तौर पर ये इख्तियारात उसे दिए थे। रिवायतों में आता है कि शैतान खुशी खुशी आसमानों से भागा दौड़ा नीचे आया और तमाम जिन्नात को जमा किया जो काफिर जिन्नात थे, बड़ी बड़ी ताकत वाले थे। उनको बुलाकर उसने कहा, देखो, मुझे इख्तियार मिला है अय्यूब के माल और दौलत पर, जायदाद पर, जानवरों पर, मैं कुछ भी तसल्लुत कर सकता हूँ। तुम में से कोई है जो मेरी मदद करेगा? मैंने ये चैलेंज किया है फरिश्तों से कि अय्यूब को मैं गुमराह करके दिखाऊंगा, नाशुक्रा बनाकर दिखाऊंगा। उनमें से एक शैतान जिन ने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं फूंक मारूं तो आग के गोले निकलते हैं। तुम कहो तो मैं अय्यूब के जो जानवर हैं उनमें जाकर फूंक मारूं। इब्लीस लईन ने कहा, ठीक है, जाओ। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास 7,000 ऊंट थे और उससे ज्यादा तादाद में गायें थीं, इसी तादाद में बकरियां थीं। इसका अंदाजा नहीं किया जा सकता कि आप अलैहिस्सलाम के पास किस कदर मवेशी थे। बहरहाल वो शैतान जिन आया और उसने फूंक मारी, आग के गोले निकले, एक साथ सारे ऊंट जल गए और जो रखवाले और निगहबान थे वो भी जल गए। और इब्लीस एक चरवाहे के भेष में दौड़ता हुआ और रोता हुआ हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा, ऐ अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपका जो रेवड़ था, जो ऊंट थे, सब जल गए। वो कहने लगा कि सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ, बाकी सब जल गए। मैं जान बचाकर आपके पास आया हूँ। एक ऐसी आग आई जिसने सारा का सारा कुछ जलाकर खाक कर दिया और इसके साथ साथ
वो उल्टी सीधी बातें करने लगा, रब की शान में क्या कुछ बकने लगा। वो कहने लगा, वो खुदा ही कैसा है जिसने हमारे ऊपर आग भेज दी, क्या वो आपकी इबादत को नहीं देख रहा है? आपकी इबादत का उसने ये सिला दिया, देखो खुदा ने आपके साथ क्या किया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उस वक्त नमाज में मसरूफ थे। आप अलैहिस्सलाम ने चिल्ला कर कहा, ऐ बदबख्त, खामोश हो जा, जो कुछ भी है रब तबारक ताला का ही दिया हुआ है। अच्छा ही हुआ कुछ मान कम हुआ, अब ज्यादा देर मैं इबादत में गुजार सकूंगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ मौला, वो माल बहुत ज्यादा था, उसकी देखभाल के लिए भी मेरा वक्त जाता था, तूने उस माल को कम कर दिया। मुझ पर तेरी ये इनायत है, अब मैं तेरी इबादत में और ज्यादा वक्त दे सकूंगा। शैतान खामोश होकर वापस चला गया और जाकर जिन्नात से कहने लगा कि मैं अपने मिशन में फेल हो गया, मुझे कोई दूसरा रास्ता बताओ। फिर एक जिन ने कहा कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं आंधियां ला सकता हूँ और इतनी बड़ी आंधियां ला सकता हूँ जो छतें उखाड़ दे। इब्लीस लईन उस जिन को लेकर आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जो बागीचे थे उन पर एक साथ आंधियां चला दी। पूरे बाग जमीन से उखड़ गए, जितने फलों के दरख्त थे सब के सब बर्बाद हो गए, पूरे बागीचे तहस नहस हो गए। फिर इस बार शैतान एक मजदूर की शक्ल में रोता हुआ आया और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से कहने लगा, मैं आपकी मजदूरी में बरसों से हूँ, ऐसी खतरनाक और खौफनाक आंधी आई कि सब के सब मारे गए, सारे बागात तहस नहस हो गए। आप बताएं आंधियां कौन चलाता है? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सब अल्लाह की तरफ से है। शैतान कहने लगा, वही खुदा जो हमारे बागीचों को तबाह करता है, वही खुदा कि जिसकी हम इबादत करें, कि जिसने इतने सालों के हमारे फलों को बर्बाद कर दिया। जब वो शैतान ये सारी बातें कर रहा था उस वक्त भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम इबादत के मुसल्ले पर थे। फिर चिल्लाकर कहा, ऐ बदबख्त, अल्लाह की बारगाह में बदजुबानी मत कर, वो खुदाए कादिर है और जब्बार है। मेरा अपना कोई बागीचा नहीं था, सब अल्लाह का ही दिया हुआ था, मैंने अपने हाथों से कुछ नहीं बनाया था। इस तरह उस वक्त भी आप अलैहिस्सलाम शुक्र बजा लाए। इन चीजों के जाने के बाद तीसरी मर्तबा फिर शैतान इब्लीस ने कुछ जिन्नात की मदद से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलादों को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की औलादों को इस तरह खत्म किया कि सब के सब एक ही आंधी में खत्म हो गए। इस बार वो फिर एक पड़ोसी की शक्ल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास रोता हुआ आया और कहने लगा, तुम्हारे सारे बेटे एक साथ चले गए, अल्लाह ने तुम्हारी सारी औलादों को खत्म कर दिया। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने हर बार की तरह इस बार भी उस पड़ोसी बने शैतान को फटकार दिया। इस तरह की आजमाइशें तकरीबन 7 साल तक चलती रही, कभी बकरियां, कभी ऊंट, कभी भैंस, और आखिर में उनका घर तक गिर गया। तब इब्लीस लईन ने कहा, ऐ अय्यूब, अब क्या बचा है, तुम्हारा खुदा ऐसा जुल्म कर रहा है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ शैतान, तुझे मालूम नहीं मैं मेरी माँ के पेट में बगैर लिबास के आया था, उसने मुझे लिबास पहनाया। मैं क्या लेकर आया था, मैं बगैर लिबास के इस दुनिया में आया था, उसने मुझे लिबास पहनाया। आज अगर वो मेरे घर से छत निकाल देता है तो ये उसकी मर्जी है, वो जब चाहे मुझे छत दे दे और जब चाहे ले ले। प्यारे दोस्तों, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र मशहूर है कि कैसे उन्होंने अल्लाह की आजमाइशों पर सब्र किया। भला कौन इतना सब्र कर सकेगा? यहाँ तक कि दुनिया की तमाम सिफली ताकतें मिलकर भी आप अलैहिस्सलाम के ईमान को डगमगा नहीं पाई, क्योंकि इब्लीस लईन को अल्लाह ने ये तसल्लुत दिया था कि जाओ, तुमको जिस कदर अय्यूब को बहकाने की कोशिश करनी है कर लो। यहाँ तक कि दुनिया की तमाम ताकतें इब्लीस को मिल गई थीं, क्योंकि इब्लीस लईन को अल्लाह ताला ने ये तसल्लुत दे दिया था कि जा,
تجھ کو جس قدر ایوب کو بہکانے کی کوشش کرنی ہے کر لے۔ لہذا شیطان نے اس کے پاس جتنی بھی طاقتیں تھیں اس نے ساری کی ساری طاقتیں استعمال کی، اور اس نے کہا اب تو ساری کی ساری چیزیں ہو گئی۔ رب تبارک تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس، تو نے دیکھ لیا ایوب کے سارے جانور ہلاک ہو گئے، ایوب کے سارے باغیچے ختم ہو گئے اور اولاد چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی ایک ایک اولاد کا جنازہ خود اٹھاتے تھے، لے کر جاتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے 16 بیٹے یا تقریباً 30 بیٹے تھے، ہر ایک کو آپ دفن کر کے آتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا اب اور کیا بچا ہے، اب تو اور کیا کرے گا؟ تو شیطان کہتا ہے کہ ابھی تو ایوب کے پاس صحت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5 چیزوں کو چھوڑ کر، زبان، آنکھ، عقل، دل، کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر ایوب کے جسم پر بھی تجھے تسلط دیتا ہوں، ان چیزوں پر تیرا داؤں نہیں چلے گا، باقی جو کرنا ہے تو کر لے۔ پیارے دوستو، انبیاء علیہ السلام کی عقل کبھی نہیں بہکتی، وہ سوتے وقت بھی بیداری کے عالم میں ہوتے ہیں۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر تسلط ملا تو شیطان اب کی بار کچھ شریر قسم کے سفلی جنات کو لے کر آیا۔ روایات میں آتا ہے کہ اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی ناک میں پھونک ماری۔ ناک میں جیسے ہی اس نے پھونک ماری جیسے آپ کے بدن میں آگ لگ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے اور پھر اٹھے تو پورا جسم اندر سے جلنے لگا اور ایسا شدید بخار ہوا کہ پورے جسم میں ہر جگہ چبھنے کے احساسات ہونے لگے۔ حضرت بی بی رحمت ایسی وفادار خاتون ہیں جو ہر مشکل میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ یہاں پر عورتیں سیدہ بی بی رحمت کی مثال کو بھی پڑھیں اور سمجھیں اور اپنی زندگیوں کو آگے بڑھائیں۔ یہی نہیں کہ شوہر کے اچھے دنوں میں ہی اس کے ساتھ رہیں، بلکہ جہاں بیمار ہو تو اسے چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں۔ حضرت بی بی رحمت تمام مشکلوں میں حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ رہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اے رحمت، اب میرے جسم کے ساتھ بھی آزمائش ہونے والی ہے، ذرا تو میرا خیال رکھنا۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ سب آزمائش کا دور چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد آپ کی تمام اولاد کے فوت ہونے میں، جانور اور باغات کے ختم ہونے میں 4 سال گزر گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہونے کے بعد آپ علیہ السلام کو 18 سال تک بیماری دی گئی۔ آپ اس بیماری میں 18 سال تک مبتلا رہے۔ پیارے دوستو، 18 سال معمولی نہیں ہوتے، اور 18 سال ایسے کہ آپ علیہ السلام کے جسم میں آپ کے ناخن جھڑ گئے، بال نکل گئے۔ آپ کسی اور چیز یا لکڑی سے بدن پر کھجلاتے تو چمڑی نکل جاتی تھی، پورا جسم پک گیا تھا۔ آپ بستر پر سوتے اور جب آپ کو بستر سے اٹھایا جاتا تو آپ کی چمڑی بستر پر لگی رہتی تھی، آپ کا جسم گل گیا تھا۔ پیارے دوستو، یاد رہے جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ اللہ رب العزت کی مرضی سے آزمائش کے لیے ہو رہا تھا، شیطان کی طاقت سے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چھوٹ دی تھی کہ تو دیکھ لے، پوری طاقت لگا لے اور میرے نبی کو بہکا کر کے دکھائے۔ ابلیس لعین کو طاقت صرف اس لیے دی گئی تھی کہ وہ نبی کے قدموں کو ڈگمگا کر کے دکھائے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک بستر پر رہے۔ آپ کے جسم سے گوشت کا حصہ کٹ کٹ کے گرتا تھا، آپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ گئے تھے، بستر پر لیٹے رہے، یہاں تک کہ بستی والوں نے آپ کے گھر کو باہر کر دیا۔ ابلیس لعین نے آ کر کے ایسی باتیں پھیلائیں کہ یہ بیمار آدمی ہے، اس کی بیماری تم سب کو لگ جائے گی۔ تو لوگ ڈر گئے اور دور ہو گئے، جتنے بھی ملنے جلنے والے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے۔ بس ایک وفا شیار خاتون تھی جو ہمیشہ آپ کی جھوپڑی میں رہتی تھی، کہاں کروڑوں کی جائیداد میں رہنے والے اور کہاں آج چھوٹی سی جھوپڑی میں ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر عام آدمی ہوتا تو گھٹ گھٹ کر مر جاتا اپنے پرانے دنوں کو یاد کر کے، لیکن وہ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام ہے
جن کی استقامت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ کچھ ایسی بھی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کے سکون کے لیے بے انتہا دوڑ بھاگ کرتی ہیں۔ میرا شوہر صحیح ہو جائے، حضرت بی بی رحمت کا بھی یہی کام تھا۔ روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاش کرتی تھی۔ آپ مزدوری کرتی اور مزدوری سے جو کچھ بھی ملتا اس میں آدھا تقسیم کر دیتی اور آدھے میں حضرت ایوب علیہ السلام کو کھانا کھلاتی اور ان کا علاج کراتی۔ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ علاج کا ذریعہ تلاش کرتی تھی۔ ایک دن شیطان نے سوچا کہ حضرت بی بی رحمت کے ذریعے بھی حضرت ایوب علیہ السلام تک پہنچوں۔ شیطان نے دیکھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کسی بھی حالت میں ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں۔ ان کی اولاد کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے جانوروں کی موت ان کو نہیں بدل پائی، ان کے باغیچے ہلاک ہو گئے، پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب بیوی کے راستے دیکھتے ہیں، شاید کوئی کامیابی مل جائے۔ پیارے دوستو، شیطان کا آخری حربہ ہوتا ہے، عورتوں کو استعمال کرتا ہے۔ عورت کے ذریعے ہی آدم علیہ السلام کو جنت سے آنا پڑا تھا، کیونکہ بی بی حوا کو ہی پہلے اس نے اپنے داؤں میں لیا تھا۔ اسی طرح ایک دن حضرت بی بی رحمت بازار گئیں کہ ابلیس لعین ایک حکیم اور طبیب بن کر دوائیاں بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے پاس ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب حضرت بی بی رحمت نے سنا تو وہ اس کے پاس دوڑتی ہوئی گئیں اور جا کر اس سے کہا کہ میرے شوہر کو ایک بیماری ہے، 18 سال سے وہ بستر پر ہیں اور ان کے جسم کا گوشت ختم ہوا، صرف ہڈیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ ان کی زبان کٹ گئی ہے۔ تو شیطان لعین جو حکیم کی شکل میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ تیرے شوہر کا علاج تو میرے پاس بہت آسان ہے، میں چٹکی میں اس کا علاج کر دوں گا۔ جب بی بی رحمت نے یہ سنا تو خوشی سے پھولے نہ سمائیں اور سوچنے لگی کہ کتنے سالوں کے بعد تو کوئی حکیم ملا ہے جو میرے شوہر کا علاج کرنے کے لیے تیار ہے۔ بی بی رحمت نے کہا آپ کی اجرت کیا ہوگی، معاوضہ کیا ہوگا؟ ابلیس لعین نے کہا کوئی اجرت نہیں، میں تم سے کچھ نہیں لوں گا، بس تیرے شوہر سے کہنا میرے نام پر ایک بکری ذبح کر دے اور صحیح ہونے کے بعد میرے نام پر ایک سجدہ کر دے۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے نام کے بغیر کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر کسی بھی جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو وہ حلال نہیں، حرام ہے۔ ہم کسی بھی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح سے سجدہ سوائے رب العزت کے کسی کو نہیں کیا جاتا۔ لیکن حضرت بی بی رحمت حضرت ایوب علیہ السلام کے علاج کے بارے میں سن کر بہت خوش ہو گئیں۔ وہ سمجھ نہیں پائیں۔ حضرت بی بی رحمت نے سوچا اتنی چھوٹی سی بات ہے، ایک بکری میں کہیں سے بھی لے آؤں گی، اور ایک سجدہ کیا ہے۔ وہ دوڑتی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس پہنچی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اسی طرح سے بستر پر تھے اور ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 18 سال میں جو ان کی بیماری کے دن تھے، ان 18 سالوں میں کبھی بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے نماز ترک نہیں کی۔ اس وقت کی امت پر جو نماز تھی، ان کی شریعت پر جو عبادت تھی، ان میں ایک وقت کی بھی عبادت اور نماز ضائع نہیں کی۔ جس حالت میں تھے پڑھتے رہے۔ بی بی رحمت دوڑ کر آئی اور اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کا علاج ہو گیا، اب آپ خوش ہو جائیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہاں سے، کیسے؟ بی بی رحمت نے کہا بازار میں ایک حکیم آئے ہیں، نئے طبیب آئے ہیں اور وہ آپ کا علاج کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہیں، اس کی اجرت کہاں سے دیں گے؟ بی بی رحمت نے کہا آپ اس کی فکر مت کرو، میں اس کا انتظام کر رہی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے کہا کیا انتظام کر رہی ہو؟ بی بی رحمت نے کہا بس اس حکیم کے نام پر ایک بکری ذبح کرنا ہے اور بس ایک سجدہ کرنا ہے۔ اتنا سن کر حضرت ایوب علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ اس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، اگر میں ٹھیک ہو گیا تو پہلے 100 کوڑے تجھے ماروں گا۔
کہ तू इब्लीस के पास कैसे चली गई। प्यारे दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं और कोई शदीद बीमारी होती है और उसका इलाज करने वाला अगर हमें मिल जाता है तो हम कहाँ देखते हैं कि इलाज किसके जरिए हो रहा है। मेरे अजीज दोस्तों, ईमान का तकाजा ये है कि तुम्हारी आजमाइशों के दौर में भी ये देखो कि तुम इलाज किससे कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि अकीदा बेचकर इलाज करना पड़ रहा है, शरीयत से हटकर के इलाज करना पड़ रहा है। हालांकि किसी भी गैर मुस्लिम से इलाज कराने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर उस इलाज में तुम्हें अपना ईमान छोड़ना पड़ता है तो ऐसे इलाज से मौत बेहतर है। एक साहब का वाकया है कि चंद साल पहले की बात है। उन्होंने कहा, बहुत दिनों से मेरे पेट में दर्द था और ठीक नहीं हो रहा था। फिर एक हकीम मिले और उन्होंने ठीक कर दिया। उनसे पूछा गया कि हकीम ने क्या किया। उन्होंने कहा कि गाय का पेशाब पिला रहा है। उनसे पूछा गया, और आपने पी लिया? उन्होंने कहा, हाँ, कभी कभी पी लेते हैं। प्यारे दोस्तों, ये इब्लीस लईन है, शैतान है, जो चीजों को बज़ाहिर हमें सही करके दिखाता है। ईमान बेचकर, अकीदा बेच करके कोई इलाज हो ही नहीं सकता। हाँ, रब तबारक ताला चाहे ये लाखों की दवाइयाँ जिनको हम समझ रहे हैं कि ये दवा हमारे मर्ज को ठीक कर देगी, अगर हम ईमान पर इस्तिकामत के साथ कायम रहें और रब तबारक ताला शिफा देना चाहे तो इस जमीन की मिट्टी से हमें शिफा दे देगा। लाखों की दवाइयाँ एक तरफ और शिफा मिलनी हो तो चंद कंकरियों से हमें शिफा मिल जाए। इसलिए कादिर और जब्बार पर यकीन और तवक्कुल रखना चाहिए। बहरहाल बीबी रहमत उस हकीम बने इब्लीस लईन के पास नबी की मोहब्बत में गई थी, गुमराह होने के लिए नहीं गई थी और उनसे गलती हो गई, वो भूल गई थी, उन्होंने अंदाजा नहीं किया। इसी वाक़े से एक बात हमेशा याद रखें और ये अहद करें, तकलीफें चाहे जैसी भी आएं, मैं किसी और को सजदा करके अपनी जिंदगी नहीं बनाऊंगा। हाँ, अगर मरना है तो रब्बे जुल जलाल के सजदे पे ही मर जाऊंगा। किसी और को सजदा करने से अगर मेरी तबीयत सही हो सकती है, कोई हमारा फायदा होने वाला है, तो यहाँ पर बच जाओ, तौबा करो। बहरहाल फिर से वाक़े पर आते हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने बीबी रहमत से कहा, तू हकीम के पास नहीं गई थी, तू शैतान के पास गई थी, वो इब्लीस लईन है। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अब शैतान इस तरह से भी हमला करने लग गया, इतनी सारी चीजें तो उसने कर दी, अब मेरी बीबी के जरिए से भी मुझे बहकाना चाहता है। फिर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ इस तरह से बयान किया है, मेरे रब, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। प्यारे दोस्तों, कुछ लोग हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुनकर सोचेंगे कि फिर सब्र कहाँ हुआ कि जब आपने कह दिया कि मुझे तकलीफ पहुंची है। कुरान में ये बात आई है कि मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है, तो फिर कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा तो फिर सब्र कहाँ है। सब्र तो ये है कि हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम कट गए और उफ तक नहीं किया। यहूदियों ने आरी से हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म काट दिया और उनसे उफ तक नहीं निकला। बहरहाल हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का अल्लाह से ये दुआ करना कि ए अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू अरहमुर राहिमीन है। इस दुआ के बारे में तफसीर में हकीमुल उम्मत ने उसको बहुत प्यारे अंदाज में बयान फरमाया कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मुझे तकलीफ पहुंची है, ये तकलीफ किसी बीमारी या जिस्म के कट कट के गिर जाने से होने वाली तकलीफ नहीं है, बल्कि जब उनसे कहा गया कि ए अय्यूब, तेरा खुदा कैसा है, तुमने इतने साल खुदा की इबादत की और वो तुझको ही शिफा नहीं दे पा रहा है, तो दूसरों को क्या देगा, माज़अल्लाह। लिहाजा इस बात से जाहिर है उन्हें बीमारी से या जानवरों और औलादों के मर जाने से तकलीफ नहीं पहुंची थी। अगर तकलीफ पहुंचती तो वो 10 साल पहले ही कह देते। 18 साल बिस्तर पर रहे और एक बार भी नहीं कहा
इब्लीस लईन ने घर के जरिए से हमला किया, बीवी को बहकाने की कोशिश की और कुछ गुस्ताखाने रसूल ने रब की बारगाह में कहा, अय्यूब का खुदा कैसा है जो उसके बंदे को ही शिफा नहीं दे पा रहा है, दूसरों को क्या देगा। उन्हें तकलीफ इन जुमलों से थी जो रब्बुल इज्जत की शान के खिलाफ कहे गए। अगर उन्हें अपनी बीमारी से तकलीफ होती तो 18 साल नहीं 80 साल भी बीमारी में बिस्तर पर रहते और कभी कुछ नहीं कहते। इसलिए हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे मौला, ऐ रब्बुल इज्जत, मुझे तकलीफ हो रही है जो ये लोग तेरी शान में कुछ भी बक रहे हैं, तेरी शान में गुस्ताख बोल रहे हैं। तू अरहमुर राहिमीन है, इन दीदा दहन लोगों को तू सबक सिखा दे, तू इनको दिखा दे कि तू शिफा कैसे देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने उसी वक्त अय्यूब की बात सुन ली, लिहाजा अल्लाह ताला ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फरमाया, अपना पैर जमीन पर मारो। जैसे ही अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पैर जमीन में मारा, वहां एक ठंडे और मीठे पानी का चश्मा जारी हो गया। प्यारे दोस्तों, हमने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जमजम के चश्मे का वाकया तो सुना है, यहाँ पर एक चश्मा हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कदमों से भी निकला है और हमारे प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो उंगलियों से निकला है। तो ये मौजिज़ा भी अंबिया इकराम की मौजिज़ों में से एक है। तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ठोकर से चश्मा निकला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, इसमें नहा लो। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उसमें गुस्ल कर लिया और पहले से बेहतर हो गए। जैसे ही उस पानी से आप अलैहिस्सलाम ने गुस्ल किया, आपके जिस्म की सारी बीमारी दूर हो गई। आप पहले से बेहतर, निहायत ही जवान और खूबसूरत हो गए। आपकी सेहत पहले से बेहतर हो गई। और इतना ही नहीं, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, हमने अय्यूब को उनकी जितनी औलाद गई थी उतनी और अता कर दी, और जो जायदाद गई थी सबको फिर से बहाल कर दिया। शैतान के फूंक मारने से जो भी नुकसान हुआ था वो फिर से बहाल हो गया। इसका मतलब ये है कि फूंक मार करके शैतान हकीकत को छुपा सकता है, खत्म नहीं कर सकता। हकीकत पे पर्दा डाल सकता है, खत्म नहीं कर सकता। और जब पर्दा उठता है तो हकीकत जिंदा रहेगी। जाहिर सी बात है, जब आप अलैहिस्सलाम की औलाद मर गई, खत्म हो गई, तो फिर जिंदा कैसे हो गई। तफसीर में लिखा गया है, फूंक मारने से वो आर्जी तौर पर सो गए थे, मरे नहीं थे। देखने वालों को लग रहा था कि वो मर गए हैं, जबकि रब तबारक ताला ने हकीकत में उन्हें जिंदा रखा था। शैतान का डाला हुआ पर्दा जब हटा दिया गया तो वो जिंदा और सही सलामत निकले। प्यारे दोस्तों, तफसीर में कहा गया है, ये जो आप अलैहिस्सलाम को आजमाइश हुई, ये खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ली थी। अगर वो पहले ही दिन बिस्तर पे ही ये जुमला कह देते तो उसी दिन मौला शिफा नाजिल करता। 18 साल तक तो आपने कुछ नहीं कहा। तो ये वो अंबिया थे जो तमाम आई हुई मुसीबत को मेरे मौला की नियामत और रहमत समझ करके उसे इस्तेमाल करते थे। और हजरत बीबी रहमत के मुतालिक फरमाया गया, उन बेचारी को आप अलैहिस्सलाम ने घर से भी निकाल दिया था। आखिर वक्त में जब वो उस हकीम के पास से होकर के आई तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब तो मेरे साथ मेरे घर में नहीं रहेगी। और आप अलैहिस्सलाम ने ये कसम खा ली, अगर मैं ठीक हो गया तो पहले तुझे मैं 100 कोड़े मारूंगा। फिर बीबी रहमत रोज चौखट से झांक करके आप अलैहिस्सलाम को देखने के लिए आती कि आपकी क्या कैफियत है, और कभी कुछ खाने पीने की चीज दूर से हटा करके रख करके चली जाती थी। एक दिन बीबी रहमत अय्यूब अलैहिस्सलाम के कमरे में गईं तो उनका बिस्तर खाली पड़ा था। आप घबरा गईं, मेरे शौहरे नामदार कहाँ चले गए। इस शदीद बीमारी में भी उनकी मोहब्बत को देखिए, जब जिस्म पूरा गल गया हो और सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही हों, फिर भी उनकी मोहब्बत कम नहीं हुई। तफसीर में लिखा है कि वो बेकरारी में इधर उधर भागती रहीं, लोगों से पूछती रहीं, ऐ लोगों, यहाँ पर मेरा एक बीमार शौहर था, किसी ने देखा? वो चल नहीं सकते थे, कोई उठा करके तो नहीं ले गया, कोई दरिंदा खा तो नहीं गया। वो बहुत परेशान थीं। पहाड़ पर एक
नूरानी शख्स इबादत में बैठे हुए थे। आप दौड़ते हुए वहां गईं और कहा कि इस झोपड़ी में मेरा बीमार शौहर था, आपने उसे देखा? उन्होंने पूछा, वो कैसे दिखते थे? खून थी। अब वक्त आता है हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस कसम का जो आपने खाई थी कि मैं 100 कोड़े मारूंगा। अब तो आप तैयार बैठे थे 100 कोड़े मारने के लिए। प्यारे दोस्तों, वो कसम हमारी और तुम्हारी जैसी नहीं थी कि सुबह में माँ की कसम और शाम में बाप की कसम। इतनी कसमें खाते हैं कि खा खा कर पेट फूल जाता है। प्यारे दोस्तों, याद रखिए, कसम को हल्के में ना लें। कुरान पाक में है, अगर किसी ने कसम खाई और तोड़ दी, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना होगा या फिर 3 रोजे रखने होंगे। अल्लाह को अपनी कसमों का निशाना मत बनाओ। झूठी कसम खाने वालों पर अल्लाह की लानत है। और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जो कसम खाई थी वो तो नबी हैं, उन्हें तो पूरी करनी ही थी। और अगर वो बीबी रहमत को 100 कोड़े मारते फिर वो कहाँ जिंदा रह पाती। फिर उन नेक खातून पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रहमत का इस तरह इजहार फरमाया कि जिब्रील अमीन को भेजा कि जाओ कि वो वफाशियार खातून मेरे नबी की मोहब्बत में चली गई थी। और जब कोई नबी की मोहब्बत में इधर उधर भटक भी जाता है तो मौला उसे हिदायत देता है। मोहब्बत रसूल में जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, उन्होंने उन्हें मोहब्बत में नहीं बल्कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को तो उनकी दुश्मनी में डाला था। लेकिन वो अपने बाप हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नजर में महबूब बनना चाहते थे। एक नबी की नजर में महबूब बनने के लिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया था, इसलिए उनकी खताएं माफ कर दी गईं। यहाँ पर जिब्रील अमीन को भेजा गया और इरशाद हुआ, जाओ हमारा बंदा अय्यूब अपनी कसम पूरी कर देगा और वो अपनी बीवी को 100 कोड़े मार देगा, फिर वो जिंदा कहाँ रहेगी। इसके मुताल्लिक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की एक आयत में इसका जिक्र किया है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से बीबी रहमत के लिए ये रहमत है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को उनकी कसम पूरी करने का एक तरीका बताया। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, आपने कसम खाई है जिसे आप पूरी करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ये चाहता है कि आप एक झाड़ू ले लें जिसमें 100 काड़ियां हों, यानी 100 तीलियां हों, और वो झाड़ू एक बार आप बीबी रहमत को मार दें, आपकी कसम पूरी हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की ये रहमत है बीबी रहमत के लिए। प्यारे दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए हजारों दर्स हैं। सबसे पहली चीज ये कि जिंदगी में आए हुए मसले, मोमिन के ऊपर आई हुई मुश्किलें, आजमाइशें और मुसीबतें नियामत हैं। अगर मोमिन ने सब्र कर लिया, उसके दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। और अल्लाह ताला ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है। अगर आपने मुश्किलात को बर्दाश्त किया, उन पर सब्र किया, तो इंशाअल्लाह कब्र में उसका अजर होगा। और कुछ लोगों को तो मौला दुनिया में ही अजर दे देता है। रब तबारक ताला की बारगाह में ये दुआ है कि मौला करीम हम सब की जिंदगी में आई हुई मुसीबतों पर हमें सब्र करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं